Okay, students, so let us start with the next question of exercise 15.1. First of all, let us see the question, what is given to us. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. It means एक 20 बल्ब्स का लॉट है, ग्रुप है, वहां पे एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, राइट। उसमें से 4 बल्ब्स ऐसे हैं कि वो डिफेक्टिव है, काम नहीं कर रहे हैं। ओके, one bulb is drawn at a random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में सेकंड वाला करेंगे। ओके, मान लो कि इतना ही आपको दिया है, वेरी इजी। एक बल्ब आपको सिलेक्ट करना है और प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। What is the probability that this bulb is defective? So here total number of possible outcomes will be 20, right? 20 bulbs है लॉट के अंदर। ओके, उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, 4। Now we want the probability of defective ones. So now let A be the event, let A be the event of, now let A be the event that the bulb is defective. Now let A be the event that the selected bulb is defective. Okay, understood? Now let A be the event that the selected bulb is defective. We need to find the probability of this event. So P of A formula, number of favorable outcomes divided by total number of possible outcomes. Number of favorable outcomes divided by total number of possible outcomes. Now which are the favorable outcomes? Favorable outcomes, it means bulb should be defective. How many defective bulbs are there? 4 defective ones. So 4 will be there in numerator and divided by possible outcomes 20. 4 divided by 20. Then what will be the answer? 4 ones are 4 5s are, and your final answer is 1 by 5. Okay, 1 by 5. Next one, second one. This is completed. Answer of first we had find it out. Okay, now second one. Read the question, what is given here. Suppose the bulb drawn in first condition here. Okay, suppose the bulb drawn in first condition is not defective. मान लो कि यहाँ पे आपने कोई एक बल्ब जो है वो सिलेक्ट किया, राइट। फर्स्ट कंडीशन में हमने कोई भी बल्ब सिलेक्ट किया एंड दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं है, इट मींस अच्छा वाला है, गुड बल्ब है। ओके, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और हम उसको रिप्लेस नहीं करते। रिप्लेस नहीं करते इट मींस सपोज मान लो कि यहाँ पे 20 बल्ब का एक ग्रुप है, राइट। उसमें से मैं एक बल्ब जो है वो निकालता हूँ, फिर मैंने चेक किया तो भाई मुझे ऐसा लगा तो भाई ये तो गुड बल्ब है, डिफेक्टिव नहीं है, तो मैं उसको रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ। रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ इसका मीनिंग, और ये बॉक्स के अंदर जो 4 डिफेक्टिव है उसमें से मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ कि कौन सा डिफेक्टिव है। जो भी मेरे हाथ में आया, डिफेक्टिव हो या ना हो, मैंने क्या किया, उसको साइड में रख दिया, रिप्लेस नहीं किया। यहाँ पे इज नॉट रिप्लेस्ड का मीनिंग क्या है, साइड में रख दिया, राइट। जैसा भी बल्ब हो, डिफेक्टिव हो या ना हो, अभी तो हमें क्या बोला गया है कि इज नॉट डिफेक्टिव। एक बल्ब लिया वो डिफेक्टिव नहीं है, नॉट रिप्लेस, रिप्लेस नहीं किया, इट मींस डिफेक्टिव वाला जो ये बॉक्स में 4 बल्ब है, राइट, वो मैं डिफेक्टिव ढूंढने नहीं जा रहा हूं। समझ में आ रहा है? आई एम नॉट फाइंडिंग द डिफेक्टिव वन, व्हाटएवर कम्स इनटू माय हैंड I check it, it is a good one and I am not replacing. It means उसको मैं फिर से बॉक्स में नहीं रख रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ, लेकर साइड में रख दिया। नॉट डिफेक्टिव हो या गुड वन हो, कुछ भी हो, नॉट रिप्लेस्ड। ओके, अगेन वन मोर टाइम,
suppose the bulb drawn in first condition is not defective and is not replaced. One more time. Suppose the bulb drawn in first condition is not defective and is not replaced. It means I am not replacing. It means I am not keeping that bulb again into the box. मैं बॉक्स में नहीं पुट कर रहा हूँ, राइट? वो ले लिया बॉक्स में से, चेक कर लिया डिफेक्टिव नहीं है, कोई बात नहीं, साइड में रख दिया. तो एक बल्ब साइड में रख दिया, एक बल्ब साइड में रख दिया, तो अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 20 minus 1, 19, right? Okay. So here total number of possible outcomes will be 20 minus 1. कितने हो जाएंगे? 19. आया समझ में? Okay. Now from these 19 bulbs, अब ये 19 बल्ब में से one bulb is drawn at a random from the rest. It means 19 में से एक बल्ब आपको निकालना है. Okay. Now what is the probability that this bulb is not defective? अब इनमें से not defective वाले बल्ब कितने हैं? Very interesting sum. I am not writing this statement. यहाँ पे क्या आएगा? Now let B be the event that the selected bulb is not defective, right? ये स्टेटमेंट आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है. मैं सिर्फ यहाँ पे आपको आंसर समझा रहा हूँ. ओके, ये फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे लिखना है, डायरेक्टली आंसर में यहाँ पे लिखने वाला हूँ. नाउ सी पे अटेंशन हियर. क्या बोला है? अब 19 बल्ब्स बचे, राइट? Now one bulb is drawn at a random from the rest. It means ये 19 में से एक बल्ब आपको सिलेक्ट करना है. ओके, वो बल्ब जो है वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. वेरी सिंपल. सी बात को समझो. बॉक्स में कितने बल्ब थे? समझना, बॉक्स में कितने बल्ब थे? लॉट को हम बॉक्स समझ लेते हैं. बॉक्स में कितने बल्ब थे? 20 में से 4 डिफेक्टिव, यानी 16 गुड वंस, राइट? 16 जो है वो अच्छे वाले हुए. ओके, 16 गुड वंस एंड 4 डिफेक्टिव. सबसे पहले मैंने एक बल्ब निकाला, वो डिफेक्टिव नहीं था. यहाँ पे आया ना, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव. डिफेक्टिव नहीं है तो उसको वो बल्ब साइड में रख दिया. तो अब बॉक्स में कितने बल्ब बचे? 90. एक बल्ब साइड में रख दिया, कितने बल्ब बचे? 90. अब 19 की सिचुएशन क्या है? 19 में डिफेक्टिव कितने हैं? अच्छे वाले कितने हैं? पहले कितने थे अच्छे वाले? 16 और 4 डिफेक्टिव. उसमें से जो एक निकाला था वो कौन सा था? डिफेक्टिव नहीं था. इट मींस अच्छा वाला था, तो अच्छा वाला मैंने साइड में रख दिया. तो अब 16 में से टोटल पहले 16 अच्छे वाले बल्ब थे, राइट? उसमें से एक बल्ब निकल गया. तो अब जो 19 बल्ब्स बॉक्स के अंदर है उसमें 15 will be good ones and 4 will be as defective, क्योंकि अभी तक तो डिफेक्टिव हमारे हाथ में ही नहीं आया. समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे मैंने एक बल्ब निकाला, is not defective. डिफेक्टिव नहीं है, इट मींस गुड वन है. पहले बॉक्स में कितने बल्ब थे? 20. उसमें से 4 डिफेक्टिव, 16 गुड वन. सी पहले 20 थे, राइट? फिर 20 का डिस्क्रिप्शन क्या है? 16 गुड वंस एंड 4 डिफेक्टिव, राइट? अब एक बल्ब जो है वो मैं सिलेक्ट करता हूं, वो डिफेक्टिव नहीं है. डिफेक्टिव नहीं है, इट मींस क्या है? गुड वन वाला है. एंड आई एम नॉट रिप्लेसिंग. रिप्लेसिंग इट मींस मैं वापस उसको बॉक्स में नहीं रखता. इट मींस यहां से एक जो है वो माइनस हो गया. तो अब बॉक्स के अंदर 15 गुड और 4 डिफेक्टिव के, तो 4 डिफेक्टिव वैसे ही रहेंगे, उसमें तो कोई चेंजेस आएगा नहीं. तो यानी कि बॉक्स के अंदर हो गया 15 गुड प्लस 4 डिफेक्टिव, यानी टोटल 19 बल्ब्स. लिख लिया मैंने यहाँ पे 19 बल्ब्स. ओके, अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव. नॉट डिफेक्टिव इट मींस गुड वन. गुड वाले कितने हैं? अब 19 में गुड वाले कितने हैं? 15. 4 तो अभी वैसे डिफेक्टिव वाले वैसे के वैसे ही है. So it means your answer will be 15 by 19. Understood? Find the probability that this bulb is not defective. Not defective it means good one. Good वाले कितने हैं? अब 15.
15 divided by total number of possible outcomes will be 19. ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखनी है होमवर्क में, ये सेंटेंस भी पूरा करना है. सो दिस इज अवर आंसर. अंडरस्टूड? आया समझ में? सो कंप्लीट दिस सम, राइट? नाउ वी विल do this 18 sum, but before that complete this sum in your book. Okay? Okay students, so let us now complete this 18th one. A box contains 90 discs. So disc होती है वो round shape, right? A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. और वो डिस्क पे हमने नंबर लिख लिया 1 से लेकर 90 तक. 1 2 3 4 ऐसे अप टू 90 तक नंबर लिख लिए हैं. ओके. If one disc is drawn at a random from the box, बॉक्स में से आपको कोई भी एक डिस्क जो है वो निकालनी है. Find the probability that it bears. It means it get. आपको मिलेगी. कौन सी डिस्क की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? फर्स्ट ए 2 डिजिट नंबर, सेकंड ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एंड थर्ड जो है वो नंबर डिविजिबल बाय 5. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इट विल कम दैट हियर टोटल नंबर ऑफ possible outcomes is equals to 90. Okay. Now first, so we will name it as A. ये एक बार जो आपको सेंटेंस लिखवा देता हूं. अभी ये सेकंड और थर्ड टाइम का सेंटेंस और फॉर्मूला आपको होमवर्क में लिखना है. ओके. लेट A be the event. Let A be the event that let A be the event that the selected disk has a 2-digit number. Again you can make this line your own. आप अपनी तरफ से ये लाइन बना सकते हो, राइट? Okay, let A be the event that the selected disk has a 2-digit number. Okay, 1 से लेकर 90 तक 2 डिजिट वाले नंबर कितने हैं? 1 से लेकर 90 तक 2 डिजिट वाले नंबर कितने हैं? It means 2 डिजिट नंबर, इसको हम क्लेरिफाई करेंगे यहाँ पे. 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होगा? 10 से, राइट? और 10 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 10 से लेकर 10, 11, 12 ऐसे कहां तक जाएगा? 90 तक, क्योंकि नंबर हमने कहां तक दिए हैं? 90 तक. तो ये सारे हम कैलकुलेट करने जाएंगे. we will calculate this that how many numbers are there. no, क्या करेंगे हम? सब्सट्रैक्ट कर देंगे. 1 डिजिट वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे. 1 डिजिट वाले नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 5 plus 4 टोटल 9 नंबर्स 1 डिजिट वाले हैं. टोटल हमारे पास कितनी डिस्क है? 90 डिस्क है, राइट? तो वो 90 में से हम क्या करेंगे? 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे. बाकी जो नंबर बचे वो ऑब्वियसली क्या होंगे? 2 डिजिट वाले होंगे. आया समझ में? ओके. लेट A be the event that the selected disk has a 2-digit number. It means from 11 to 90. So therefore P of A का आंसर क्या आएगा? क्या करने वाले हैं हम? 9 को सब्सट्रैक्ट करने वाले. किसमें से? फ्रॉम 90. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 90 minus 9, इट मींस 81 डिवाइडेड बाय 90. अंडरस्टूड? कैंसलेशन पॉसिबल है. 9 9s are 81 और 9 10s are, so यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, and the final answer is 9/10. Okay, next second one.
directly we are solving the question. ये स्टेटमेंट और फॉर्मूला आपको लिखना है होमवर्क में. P of B सेकंड कंडीशन, सेकंड इवेंट में हमें क्या चाहिए? A perfect square number. Okay, now which are the numbers are called as a perfect numbers from 1 to 90? 1 से लेकर 90 तक के बीच में कौन से नंबर्स जो है वो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे. इट मींस जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है. ओके, देन वी विल से दैट 1 is a perfect square number, right? 1 के बाद क्या आएगा? 4. 4 is a perfect square number. 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2. 4 के बाद 9. 9 के बाद 16. 16 के बाद 25. 25 के बाद 36. 36 के बाद 49. 49 के बाद 64. 64 के बाद 81. 81 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या है? 100. ऑब्वियसली अब आगे बढ़ता जाएगा, बट अगर दिस इज नंबर फ्रॉम 1 to 90, सो ये 100 तो आ नहीं सकता. ओके, 1 इज द स्क्वायर रूट. 1 का स्क्वायर रूट 1. द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. द स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3. Square root of 16 is 4. Square root of 25 is 5. Square root of 26 is 6. Square root of 49 is 7. Square root of 64 is 8. Square root of 81 is 9. These are called the perfect square numbers because their square roots are possible. और हमने उसके स्क्वायर रूट भी लिखे हैं. तो टोटल कितने नंबर्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Total 9 numbers are the perfect square numbers between 1 to 90. 1 से लेकर 90 तक के बीच में, राइट? 1 से लेकर 90 तक बीच में नहीं, 1 से लेकर 90 तक में 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं. ओके, सो टोटल 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स डिवाइडेड बाय 90. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 90 आएगा, फेवरेबल आउटकम्स में 9 आएंगे, राइट? सो 9 1s are 9 10s are and your final answer is 1 by 10. आया समझ में? है ना? वेरी इजी. ओके, थर्ड वन, let's see with the event. Let's see with the event that the selected disk has a number divisible by 5. अब 1 से लेकर 90 तक में कौन कौन से ऐसे नंबर है जिसको आप 5 से डिवाइड कर सकते हो? तो अब हर एक को ढूंढने चाहोगे. 1 is not divisible by 5. 2 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते. 3 को नहीं कर सकते. 4 को नहीं कर सकते, बट 5 को कर सकते. ओके, 5 के बाद डायरेक्ट दूसरा नंबर कौन सा आएगा जिसको हम 5 के साथ डिवाइड कर सकते हो? वो नंबर कौन सा है? 10. 10 के बाद 15. 15 के बाद 20. ऐसे आपको कैलकुलेट करते जाना. तो कितने नंबर्स हुए? 5, राइट? गिनते जाओ. 5 10 15 20 25, राइट? फिर 30 35 40 45 50. 10 नंबर्स हो गए. ओके, 50 के बाद 55. 55 के बाद 60 65 70 75 80 85 एंड 90. लास्ट नंबर कौन सा होगा? 90. 90 को हम 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं. आंसर विल बी 18. तो टोटल कितने नंबर्स हुए? 18 हुए. पहले 10 हो गए थे, फिर बाद में 10 plus 5 15. 15 plus 3 18. So there are total 18 numbers which we can divide by 5, right? 1 से लेकर 90 तक ऐसे 18 नंबर्स है जिसको हम 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सो 18 favorable outcome 18 is divided by total number of outcomes, that will be divided by total number of possible outcomes, that is 19. Okay, now how to cancel? It is cancelled by 9. 9 2s are 9 10s are, or we can directly cancel 18 5s are. That will be easy for us. ऐसे भी आप करो तो भी अब 2 5s are 10 हो जाएगा. Okay, 18 1s are 18 and 18 5s are 19. So our final answer is 1 by 5. Understood? Both the sums were very easy. Complete these two sums in your book and then we will start with the
remaining sums of the exercise 15.1. Okay. Okay students, so now let us start the 19th question of exercise 15.1. What is that? A child has a die whose 6 faces show the letters as given below. एक चाइल्ड है, उसके पास डाइस है. डाइस में जैसे हमको मालूम है कि नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6. बट अब ये चाइल्ड के पास ऐसा डाइस है in which the numbers are not given, but instead of numbers the letters are given like this: A, B, C, D, E and A. Okay, the die is thrown once. What is the probability of getting A? और दूसरा हमें फाइंड करना है D. Very simple. Okay, so let us complete this first of all. Here total number of possible outcomes will be 6, right? Okay, now I am not writing this line. अब मैं ये लाइन एक बार भी नहीं लिख रहा हूँ, right? This ये जो लाइन जो आपको लिखनी है, that will be homework for you. Let A be the event of getting A on dice. Let A be the event of getting A on dice. डाइस के ऊपर A आए, उस इवेंट को हम क्या नाम दे रहे हैं? A. Okay. So therefore probability of event A is number of favorable outcomes divided by total number of possible outcomes. Now how many are favorable outcomes for us? Favorable outcomes कितने होंगे? A कितनी बार आ रहा है? 1 and 2, right? So 2 are our favorable outcomes divided by total number of possible outcomes 6. 2 1s are 2 3s are, and the final answer is 1 by 3. Understood? आया समझ में? Okay. Now second one. Let B be the event. Let B be the event of getting D on dice. Of getting D on dice. Dice के ऊपर D आया, उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? P. So therefore P of B, write down the formula yourself. P of B, probability of event B will be B event की probability. B event में हमें क्या चाहिए? D on dice, right? So D कितनी बार आ रहा है? 1 time. So 1 will be your favorable outcome. Divided by total number of possible outcome will remain 6 only. So your final answer is 1 by 6. You cannot cancel this. Okay? Over sum. बहुत ही easy था, right? Okay. Now this one is somewhat difficult to understand, but pay attention, very careful, right? इसलिए आपको पहले बोल दिया कि यहाँ पे जो आपको utmost attention रखकर ये सम जो है वो समझना है. Okay, let us start first of all the question. Suppose you drop a die at a random on the rectangular region shown in the figure. Figure में है, ये figure हमको दी गई है, ये rectangular region है. The length is 3 meter and the breadth is 2 meter. Inside a rectangular one circle is given whose diameter is 1 meter. एक डाई जो है, राइट, डाइस जो होती है, राइट, उसका थ्रो करते हो तो मान लो कि वो रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं पर भी पड़ रहा है. ओके, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे, यहाँ कहीं पे भी आ सकता है, सर्कल के अंदर भी आ सकता है, राइट. ओके, what is the probability that it will land inside the circle of diameter 1 meter? 1 मीटर के सर्कल के अंदर ही आपका डाई वहां पे पड़े, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है. समझ में आया? What is the probability that it will land inside the circle of diameter 1 meter? 1 मीटर के सर्कल के अंदर जाकर ही आपका डाइस जो है वहां पे गिरे, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है. 1 मीटर
इट मींस हमें क्या करना होगा, 1 मीटर ये इतना सर्कल है, इट मींस हमें इसका एरिया फाइंड करना होगा. वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल. ओके, so before writing anything, let us find first of all the area of circle. Here area of circle is given by the formula. area of circle की formula क्या है? Here area of circle is equals to pi r square. But r is not known to us. हमें r तो मालूम नहीं, हमें क्या मालूम है? डायमीटर मालूम है. तो डायमीटर में से आप r फाइंड कर सकते हो. यस, कैसे? नाउ डायमीटर की फॉर्मूला हाफ ऑफ डायमीटर की फॉर्मूला क्या होगी? डबल ऑफ रेडियस. अब रेडियस को एक बार और यहां से लेकर दूसरी बार 2 बार रेडियस को ऐड करो तो आपको क्या मिल जाएगा? डायमीटर. इट मींस डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 into रेडियस. नाउ यू नीड टू फाइंड द रेडियस, राइट? सो हम डायरेक्टली रेडियस की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. नाउ रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर. डायमीटर कितना है? 1 and 2 will be as it is. So radius is 1/2 meter. Radius क्या आई? हाफ मीटर. 1/2. Okay. Let us put down this into our formula. So therefore, area of circle is pi r square. Pi as it is, or you can say it as 22/7. Let us give the value only. Pi means 22/7. Radius square 1/2, 1/2 2 times. Radius square means r multiplied by r. Already one r is 1/2. Then second r will be again 1/2. Okay, 2 11s are 11, 1s are 11. Again into 1 11. So your final answer will be 11. 7 2s are 14. Right? So 11/4 meter square is the area of circle. Now we will also find the area of rectangle. Area of rectangle. What is the formula of area of rectangle? L into B. Right? What is your length? 3. Breadth 2. 3 2s are 6 meter square. Okay. अब ये दोनों का एरिया का हम करेंगे क्या? किसी को आइडिया आ रहा है? किसी को आइडिया है? What we are going to do the values of this both. हमें जो ये दोनों वैल्यू मिली उसका हम क्या करने वाले हैं? सोचो कि आपको सर्कल के इनसाइड डाइस जो है वो आकर गिरे, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. इट मींस ये जो एरिया है दैट विल बी योर फेवरेबल आउटकम. समझ में आ रहा है? इसके अंदर आकर आपका डाइस गिरता है, राइट? इसके अंदर आ जाता है, then it is called your favorable outcome, क्योंकि हमें उसकी ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. इसीलिए ओके, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आपका डाइस जो है वो कहां पर आकर लैंड करे? सर्कल के अंदर. ओके, सर्कल के अंदर आता है, then it means it will be your favorable outcome. ओके, now possible outcome. पॉसिबल आउटकम इट मींस पूरा जो आपका डाइस है वो कहां पर गिर सकता है? ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल में आकर कहां पर भी गिरे. सो ये पूरा रेक्टेंगल जो है दैट विल बी योर पॉसिबल आउटकम. द एरिया ऑफ सर्कल इज योर फेवरेबल आउटकम. ऐसा समझ में? ओके, सो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला. बिफोर दैट वी विल राइट दैट स्टेटमेंट. लेट A be the event. Let A be the event that it की जगह पे dies, that dies will land inside the circle of diameter 1 meter. That you have to write in your homework. So therefore P of A, number of favorable outcome divided by total number of possible outcome. Okay,
favorable outcome it means area of favorable outcome it means area of circle. So 11 by 4, right? 11 by 14, and it is divided by total number of possible outcome. It means area of rectangle, that is 6. 6, if nothing is there in denominator, then 6 will be divided by 1. ओके, इसका हम कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे. क्या लिखा है 11 by 14, that is a big denominator, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है यहाँ पे नीचे 6 by 1. ओके, आपको मालूम ही है कन्वर्ट इट इनटू रेसिप्रोकल. ये डिनोमिनेटर निकाल दो तो नीचे का जो है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो वो क्या होगा 11 by 14 इनटू 6 by 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 1 by 6. Now you cannot cancel this 11 by 14 and 1 by 6. 6 is not cancelled with 11. So your final answer will be 11 by 14 6 are 14 6 are क्या आंसर आएगा 84. Let us check. 6 4s are 24. 6 1s are 6 plus 2 8 84. 11 by 84 meter. Sorry, probability has no unit. Probability का कोई यूनिट नहीं होता है. So 11 by 84 is your final answer. Okay, maybe it may be possible that pi की वैल्यू पुट ना की हो, तो क्या आंसर आएगा. तो यहाँ पे पाई का पाई वैसे रहेगा. You are not supposed to put 22 by 7. तो मान लो. Okay, then second sum we are doing very easy. That is also okay. ये हमने फर्स्ट मेथड कर ली कि भाई पाई की वैल्यू पुट की हो तो ऐसा करना है. Okay, now if suppose we are not putting the value of pi, pi को हम pi ही रखते हैं, तो it means यहाँ पे वहाँ पे क्या आएगा pi into 1 by 2 into 1 by 2, then it will be pi by 4, right? तो 11 by 14 की जगह पर क्या आ जाएगा pi by 4. तो यहाँ पर भी वही होगा. तो फाइनल आंसर क्या होगा pi 11 by 14 की जगह पे pi by 4 into 1 by 6. 1 by 6 का आंसर क्या होगा pi 1s are pi divided by 24. So the final answer of probability is pi by 24. आया समझ में? I think this answer is given in your textbook. टेक्स्टबुक के पीछे जो आंसर दिए गए हैं मेरे ख्याल से उसमें ये आंसर दिया है, right? That's why I have made you to understand how this answer came. समझ में आया? One more time. 22 by 7 की जगह पर pi वैसा ही रखा 1 by 2 into 1 by 2. So pi 1 into 1, so pi 2 2s are 4. और यहाँ पे तो वो तो 6 ही आएगा. 11 by 14 की जगह पे pi by 4 divided by 6 by 1. रेसिप्रोकल करोगे तो 11 by 14 की जगह पे pi by 4 into 1 by 6. pi into 1 pi 6 4s are 24. Final answer is pi by 24. If you are not putting the value of pi, if you are putting the value of pi, then your answer will be 11 by 84. Understood? समझ में आया दोनों सम? इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर आपका डाइस गिरे तो आपको it means उसकी probability आपको फाइंड करनी है. It means this region is your favorable outcome and the total region is your possible outcome, right? And the total region is your possible outcome. So favorable outcome divided by possible outcome, दोनों का एरिया जो है वो आपको यहाँ पे पुट करना है, फिर बाद में सॉल्यूशन करना है. समझ में आया? So complete these two sums in your book and then we are going to complete one more sum, question number 21. After completing our question number 21, we will end our lecture here only. Understood? Before that, complete this sum in your book. Okay students, so now let us complete the today's last sum, right? आज का लास्ट सम जो है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और फिर बाद में we will end our lecture here. Let us see the question number 21. What is given to us? A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective. It means
ऑलरेडी देयर आर टोटल 144 बॉल पेन्स, उसमें से 20 जो है वो डिफेक्टिव है। 20 डिफेक्टिव वो अलग नहीं है, 144 के अंदर ही 20 जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है। ओके, एंड the others are good, it means 20 are defective, then obviously इसमें से आप 20 माइनस कर दो, 144 माइनस 20, तो रिमेनिंग आंसर क्या आएगा, 124। तो वो जो 124 है वो क्या है, गुड है। ओके, नाउ Nuri is a one girl will buy a pen if it is good but will not buy if it is not, but if it is defective। ऑब्वियसली कोई भी होगा तो वो अच्छी वाली पेन ही लेगा, डिफेक्टिव पेन तो कोई लेगा नहीं। ओके, now the shopkeeper drawn one pen at a random and it gives to her, वो नूरी को दे देता है शॉपकीपर। what is the probability that she will buy it? नूरी वो पेन को बाय करेंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। एंड सेकंड, she will not buy it, वो पेन नहीं खरीदेगी, उसकी भी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, she will buy it, वो पेन जो है वो खरीदेंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। वो पेन कब खरीदेंगी, जब वो पेन गुड हो, अच्छी वाली हो तब। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत लिख कर रखा है। Here total number of possible outcomes are 144, सबको मालूम है, राइट, कि भाई 144 जो है वो बॉल पेन्स लॉट के अंदर है, राइट। नाउ लेट A be the event that Nuri will like a pen। तो नूरी कब बाय, नूरी जो है वो पेन कब बाय करेंगी, जब वो पेन अच्छी वाली हो। तो अच्छी वाली कितनी पेन है, टोटल 144, उसमें से 20 वाली आप डिफेक्टिव माइनस कर दो, तो अच्छी वाली कितनी हुई, 124 हुई। तो फेवरेबल आउटकम्स व्हाट विल बी योर फेवरेबल आउटकम्स, 124, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स will be 144। now let us cancel it with first of all 4। ओके, 4 के साथ हम जो है वो इसको कैंसिल करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 4 into 31, 31 4 is 144। ओके, 144 को आप क्या आएगा आंसर, 20 है तो यहाँ पे 36। लेट अस चेक, 36 4 तो 144 ही होता है ना, 6 4 24, यस, 4 3 12 plus 2 14, it is 144। so now this 4 and 4 will cancel, 31 by 36 is our final answer, we cannot cancel it ahead because 31 is a prime number। understood, this is the answer of event A। now here you have to write a statement yourself that now let B be the event that Nuri will not buy a pen। okay, यहाँ पे लिखा है that it will not buy if it is defective, defective होगी तो वो buy नहीं करेंगी। it means we have to write the favorable outcomes of defective pen। तो defective pen कितनी है, 20 are defective, right। तो number of favorable outcomes कितने हुए, 20 हुए, because that are the defective pens। समझ में आ रहा है ना, वो कब नहीं बाय करेंगी, पेन को कब नहीं बाय करेंगी, when it is a defective। ओके, तो डिफेक्टिव वाली कितनी पेन है, 20, it means 20 will be your favorable outcomes divided by possible outcomes 144। if you cancel it, आप इसको कैंसिल करो तो 2 के साथ कैंसिल करो या 4 के साथ। ओके, 4 के साथ ही करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 5 है, और यहाँ पे मैंने लिखा है 4 को कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 4 36 है, 4 4 cancel, 5 by 36 is the final answer of event B। understood, आया समझ में, 5 by 36 is the final answer of event B। this was the answer of event A, this is the answer of event B। understood, this was the last sum of our today's lecture, the remaining sum we will complete in the next lecture। hope so you had understood today's lecture। okay, bye bye।